Hello everyone, good evening. I hope you guys are doing absolutely fine. I welcome you back to the channel. I know it's been a while since I posted my last video, and I promised to make this one and post it on Monday night itself. But I've been spending some time on working around the content that I'm putting out, especially more so on the quality front. I believe I've got a lot of feedback around video quality, audio quality, etc. So I thought I will give this some more time and work on it a little bit. Of course, the sort of content that I'm putting out is valuable. I'm confident about the quality of the content that I have, but of course, there is a lot of room for improvement on the video and audio quality front, which is something I've been working on. Additionally, from a visual perspective, I've also tried to incorporate a few AI tools into my visual representation part on the video front. And I hope you guys like this video. I have spent a lot of time working on this format, and we will continue with this. I know it's a different setup. I hope you like this. I hope you like the quality, the video quality now, and I hope it's much better. So I will see you guys on the other side, and let's start with the disclaimer as always. Right, guys. So welcome to the video. I hope you guys have read the topic. I'm sure you must have read it in the title as well. It is supports and resistances, and this is going to be a long video. I'm going to be talking about SNR in detail, and हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, क्या कॉमन गलतियां करते हैं लोग एसएनआर के टॉपिक के अराउंड, इसको आप कैसे अपने सेटअप के अंदर या अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो what are some other tools that you can complement or rather that complement the support and resistance setup, and we will also dig deep into the anatomy of supports and resistances. Why do they work, if they work or not, and what is the logic behind it, right? जब तक आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के अंदर उस चीज के लॉजिक को नहीं समझते तब तक आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, राइट? सो वी डोंट वांट टू डू दैट. We will only be using tools which make sense to us and we know them really well, right? तो supports and resistances के बारे में हमने I keep messing that up, and it's like it keeps messing up with my what do you call it, tongue, but supports and resistances के बारे में हमने काफी सुना है यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं. आई एम श्योर इफ यू रेड बुक्स अराउंड टेक्निकल एनालिसिस यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. बट इसको हम बेसिक से एकदम उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहाँ पे आप इनको एक्चुअली यूज कर पाए इस वीडियो के अंदर ही. ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना. आई एम श्योर यू विल डराइव अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस. एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो like I said, I have incorporated a few AI tools for the visualization part from here on. एंड नो फ्लफ गाइड है ये लेवल्स की, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस की, एंड स्क्रैच से हम इसको सीखेंगे. तो चलते हैं अगले पोर्शन के ऊपर. एंड ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर एज ऑलवेज, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. Any video that I'm making on this channel is primarily made from an educational standpoint. If I discuss any stock, script, or security in this video, please do not construe that as investment advice. Please consult your financial advisor before you make any investment decisions, because this is your hard-earned money and you should do full research before you invest it. ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर हमने पढ़ लिया है. आगे चलते हैं. अब समझने की कोशिश करते हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस होते क्या हैं, और इसके फर्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं सपोर्ट पे. ठीक है, तो यार सपोर्ट इन जनरल, बिफोर वी इवन गो टू व्हाट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज, हमें जानना ये जरूरी है कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, राइट? सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी या फिर जहाँ पे एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए वो जोन्स बनते हैं. इसका क्या मतलब है? कोई ऐसा पर्टिकुलर प्राइस लेवल जरूर होगा स्टॉक के अंदर जहाँ पे जाके प्राइस वापस नीचे आ जाता है, या फिर ऐसा कोई लेवल होगा जहाँ पे जाके प्राइस वापस ऊपर आ जाता है. ठीक है, ये ऊपर या नीचे इसलिए आता है बिकॉज उन जैसी प्राइस लेवल्स पे स्टॉक आता है वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है. अपसाइड डाउनसाइड दैट डज नॉट मैटर राइट नाउ. व्हाट मैटर्स इज these are areas of heightened volatility and interest. अब interest can be on the upside or on the downside, that we are not concerned about right now. But what you need to know is supports and resistances are areas of heightened volatility. ठीक है, these are price zones or price levels where maximum number of people are participating in the stock. It could be on the upside wherein a lot of people are willing to buy that stock at that price,
or it could be on the downside that a lot of people are willing to sell that stock, at that particular price. तो ये दोनों चीजें हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस का बेसिक क्रक्स, कि जोन्स जहाँ पे वॉलेटिलिटी हाईएस्ट है, ट्रेडिंग एक्टिविटी हाईएस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट हाईएस्ट है, वहां पे हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस जनरली मार्क करते हैं. ये हम समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी, बट आप सपोर्ट वाली स्लाइड पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा बायर्स स्टेप इन हियर अगेन एंड अगेन, राइट. तो ये जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन है और ये जो कैंडल स्टिक्स मैंने बनाई है, ये जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर रिवर्स कर जाता है. तो ये हमारा सपोर्ट रीजन हो गया. इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब जब इस लेवल पे आता है उसे बायर्स सपोर्ट करते हैं, बायर्स अपना प्रेशर बनाते हैं और स्टॉक ऊपर चले जाता है. ठीक है. अ प्राइस जोन वेयर बाइंग प्रेशर हैज रिपीटेडली स्टॉप द फॉल. ठीक है. तो एक एक फॉल हो रही थी, नीचे आ रहा था स्टॉक, स्टॉक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया. जैसे ही इस लेवल पे आया, ये जो फॉल थी इसको रोक दिया गया, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया स्टॉक को, और स्टॉक जो है ऊपर जाने चले गया. वापस नीचे आया, इस लेवल पे आया, इस लेवल पे ही रहा फॉर 2-3 days एक्सेट्रा इफ दीज आर डेली कैंडल्स, एंड देन फिर ऊपर चले गया. तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है इस डॉटेड ग्रीन लाइन के पास आता है और वापस ऊपर चले जाता है, राइट. सो दिस इज अ प्राइस जोन वेयर बायर्स, ठीक है, वेयर बायर्स आर सपोर्टिंग द स्टॉक, वेयर बायर्स आर सेइंग नो, this stock deserves a higher price, and they start showing interest in that stock at those levels. ठीक है. तो buyers step in here again and again is what the notion is. आपको जितनी भी बार मैक्सिमम बायर्स दिख रहे हैं उधर, और जितनी भी बार वो ग्रीन डॉटेड लाइन को टच कर रहा है, उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका सपोर्ट जोन होगा. इफ देर आर 5 टच पॉइंट्स ऑन द सपोर्ट जोन, जहां से 5 बार स्टॉक उस लेवल से रिवर्सल दिखा रहा है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर यू. That means there have been 5 instances in the past when every time the price has come to that level, it has gone back up because buyers have shown interest at that price. That to us is a strong support, right? जितने कम instances होंगे उतना weak support होगा. तो support को identify करने के लिए आपको क्या identify करना है? एक ऐसा जोन जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है वापस. बहुत सिंपल है. अगर आप ये बेसिक्स को समझ के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करेंगे, आप कभी भी गलत ड्रॉ नहीं करेंगे. ठीक है. हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे, चार्ट्स भी खोलेंगे, सब कुछ करेंगे, बस लेट जस्ट बेयर विद मी. रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सीलिंग या फिर रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? ये एक वो प्राइस जोन है जहां पे सेलिंग प्रेशर हैज रिपीटेडली स्टॉप्ड द रैली. दोनों केस में कुछ चीजें रुक रही हैं. क्या रुक रहा है? सपोर्ट के केस में एक फॉल रुक रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के केस में एक रैली रुक रही है. मतलब एक स्टॉक ऊपर जा रहा था और वो ऊपर जाना रुक जाता है बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाता है. द स्टॉक, there is selling pressure in that stock at that level, and the stock is resisting to move up, which is why it's called the resistance zone. ठीक है. तो like support, जितनी मैक्सिमम बारी आपका स्टॉक उस प्राइस से आके नीचे जाना शुरू कर देता है, उतना ज्यादा बेटर आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है. मतलब अगर मान लीजिए एक स्टॉक 100 और 150 के बीच में ट्रेड करता है, 100 इज योर सपोर्ट, 150 इज योर रेजिस्टेंस. अगर इन द लास्ट लेट्स से 6 months the stock has come to 150 level 5 times and it has come back down, that means it is a strong resistance level for me. इसका क्या मतलब है? मुझे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस से क्या मतलब? व्हाई डू आई नीड टू ट्रैक दिस? वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर फर्क पता चल गया हो. ठीक है. और ये पता चल गया हो कि कौन से रीजन के अंदर कौन सा टाइप बायर या फिर सेलर स्ट्रांग होता है. तो सपोर्ट के केस में आपका बायर स्ट्रांग हो जाता है उस लेवल पे, रेजिस्टेंस के केस के अंदर सेलर स्ट्रांग हो जाता है आपके उस लेवल पे. तो रेजिस्टेंस इज सेलर शो अप हियर अगेन एंड अगेन. ठीक है. इस चार्ट पे अगर आप विजुअली देखेंगे तो ये जो रेड लाइन है, डॉटेड लाइन, ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है. जब जब स्टॉक इस लेवल पे आता है, सेलर्स आते हैं और बोलते हैं नहीं भाई यू डोंट डिजर्व दिस प्राइस, एंड दे स्टार्ट पुलिंग इट डाउन, दे स्टार्ट शोइंग सेलिंग प्रेशर, स्टॉक के अंदर सेलिंग आ जाती है और वो वापस नीचे गिर जाता है. सेम हैपेंड हियर एज वेल. अगेन स्टॉक ऊपर गया, इस जोन के अंदर आया, सेलिंग प्रेशर बना और स्टॉक वापस नीचे आ गया. तो आप देख पा रहे हैं कि बार बार जब स्टॉक इस लेवल पे आता है वो वापस नीचे चले जाता है बिकॉज ये आप रेजिस्टेंस जोन के अंदर है. ये मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि जितनी भी ऑडियंस है, चाहे उनको स्विंग ट्रेडिंग आती है, टेक्निकल एनालिसिस आता है या नहीं आता, आई होप आप लोग को भी समझ आ रहा है.
right? So we will start from the basics and of course move to the concepts which people who already know the basics can apply. एंड ऐसे ही हम वीडियोस की प्रोग्रेशन रखने की कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स विच आर जनरली मोर सिंपल। आगे चलते हैं। अब इस सेगमेंट पे आ जाते हैं कि हमें ये सीखने की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी बॉदर लर्निंग दिस, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ कोर्स पॉइंट इज, अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस वो रीजन है जहाँ पे वॉलिटिलिटी हाईएस्ट है। अब इन जनरल वॉलिटिलिटी और रिस्क को हम साथ में लेके चलते हैं। तो इन रीजन्स के अंदर अगर रिस्क हाईएस्ट है, मतलब स्टॉक ऊपर या नीचे बहुत जल्दी जा सकता है, तो उन रीजन्स को हमें ट्रैक करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बिकॉज वॉलिटिलिटी से ही आपका रिटर्न बनता है, राइट? अगर आपको वॉलिटिलिटी वाले रीजन से डर लगता है तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर आउटसाइज गेन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी को मैनेज करना ही आर्ट है। That is what you have to learn, and that is what is going to make you outsize returns, right? So if you're able to trade supports and resistances well, a large part of the battle is won. It will help you time entry and exits better, ठीक है? It will help you manage your risk better. आपके stop losses कहाँ पे आ सकते हैं, आपके टारगेट्स कहाँ से आ सकते हैं, ये सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आपको बहुत हेल्प करते हैं। रिवर्सल्स को बहुत जल्दी स्पॉट करने में मदद करता है, ठीक है? और क्राउड की साइकोलॉजी, मतलब मैक्सिमम लोग कौन से लेवल्स पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उस स्टॉक के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, बी इट योर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और retail investors like you and me, what is their behavior in that stock? Every time the stock comes to that level or a specific level, how does the market respond to it is something that you can learn from supports and resistances. खाली इनको आइसोलेशन में देख के कुछ फायदा नहीं होगा, आपको ऑफ कोर्स इनके साथ और भी चीजें पेयर करनी पड़ेंगी, बट अगर आप करेंगे, अगर आप इनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, देयर इज नो रीजन फॉर इट टू नॉट वर्क, राइट? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, डज इट एक्चुअली वर्क? yes, it does work because everyone is watching it, right? It's like your moving averages, right? Your 200-day moving average, your 50-day moving average, these are moving averages which all traders, large pension funds, mutual funds, etc., all of them are tracking, right? These are key levels. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पेंशन फंड्स, हेज फंड्स अपने एनालिसिस के अंदर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को बहुत ऊपर रखते हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू इट, बट यस, इट डज टेल यू बिहेवियर ऑफ द मार्केट, राइट? तो ये बिल्कुल चलता है बिकॉज सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, इसलिए चलता है। दीज आर लेवल्स विच अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैक एंड दे स्टार्ट शोइंग बिहेवियर बेसिस दैट। तो आपको ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये बिल्कुल चलता है अगर आप इसे आइसोलेशन में ना देख के और भी टूल्स के साथ इसे पेयर करें। अब थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में समझ लेते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को ना एक पतली सी लाइन से ड्रॉ करते हैं। यार, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आपकी लाइन जो आपने स्टॉक, इनफैक्ट आपकी लाइन जो आपने चार्ट पे ड्रॉ करी है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, बोला इससे ऊपर जाएगा तो स्टॉक ऊपर जाता रहेगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है? आपकी लाइन से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता जो आप चार्ट पे ड्रॉ कर रहे हैं। आपको जब तक स्पिरिट नहीं समझ आएगी, एनाटॉमी नहीं समझ आएगी, चार्ट स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा, तब तक आप ये लाइंस बस ड्रॉ करते रह जाएंगे, और जितनी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी आपको। तो ये लाइंस को ड्रॉ करना अवॉइड कीजिए, इंस्टेड आप रीजन्स को ट्रैक कीजिए कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वॉलिटिलिटी हायर हो सकती है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ स्टॉक के अंदर, राइट? देयर इज नो वन एग्जैक्ट लेवल दैट यू कैन मार्क एंड से कि भाई दिस इज योर resistance or support level. These are typically resistance and support zones. Of course, when you when you have a lot of experience, you can of course mark pivot points कि भाई इस point के ऊपर अगर high volatility, sorry, high volume close होगा तो मेरा stock pivot कर सकता है on the upside, so on and so forth. But in general, it is better, it's a better practice to mark regions instead of thin lines. Next one is ignoring the wicks. अब जिस बंदे को विक्स के बारे में नहीं पता, I will keep that for another video wherein we learn candlesticks in detail. But in general, candlesticks के अंदर जो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट होता है, इनको विक्स बोलते हैं, ठीक है? इन विक्स को इग्नोर करना भी एक एक बड़ी मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं। बिकॉज क्या होता है, हम खाली कैंडल की बॉडी को जज करके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मार्क कर देते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि भाई विक के अंदर भी सप्लाई या डिमांड थी, जो ऑफ कोर्स सस्टेन नहीं हो पाई, right? But there are people who have bought in at those levels. There are people who have sold in at those levels, and we have to consider that. मैं ये नहीं बोल रहा विक से विक को ड्रॉ करो,
जनरली हम फुल बॉडी कैंडल्स को या बॉडीड कैंडल्स को ही मार्क करते हैं और उसी से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस लेते हैं, बट प्लीज डो नॉट इग्नोर दोज विक्स। यू नो, अगर कोई अपसाइड पे विक है तो मेक श्योर दैट आपका जो बॉडी, अगर कंप्लीट बॉडी जो है उसको पार कर गई है आपकी कैंडल, मतलब मैं आप हिंट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं एंड देयर इज अ विक ऑन द कैंडल फ्रॉम वेयर द रेजिस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम, you want to make sure that that wick की supply has also been absorbed before you enter that trade and call it a breakout already, right? So please keep in mind wicks are also important, don't ignore them. The next one is of course marking too many levels. Like I said, बहुत सारी lines आप mark कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, it's just going to add to the confusion and you're copying the same level on every time frame. ये नहीं कर सकते आप। अगर आप एक डेली टाइम फ्रेम चार्ट को देख रहे हैं उस पर रेजिस्टेंसेस, मैं ये नहीं कह रहा रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, बट ऑफ कोर्स आप सेम रेजिस्टेंस लेवल को ट्रैक नहीं कर सकते इंट्राडे लेवल पे, वीकली लेवल पे। जैसे ही आप चार्ट्स के टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं आपको रेंजेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। इन जनरल हाई वॉलेटिलिटी रीजन्स या फिर बेटर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे बनती हैं और वो लोअर पे भी ट्रांसलेट होती हैं, बट दैट्स नॉट अ फिक्स्ड रूल, राइट? सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर लुकिंग एट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ऑन द टाइम फ्रेम दैट यू आर ट्रेडिंग एज वेल। सो ये हो गई गलतियां कुछ। थोड़ा सा अनाटमी के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग विक को रिजेक्ट कर देते हैं, राइट? विक को देखते ही नहीं है। तो इस केस के अंदर जो आप चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर ये जो स्टॉक है, ये रेड कैंडल्स बनी, ये एक जो बड़ी विक वाली कैंडल बनी है ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है? क्या हुआ, स्टॉक ने ऊपर तो गया, स्टॉक ऊपर तो गया, बट ये रेजिस्टेंस जो जोन है उसके अंदर इसको रिजेक्शन मिली और स्टॉक वापस नीचे प्लमट कर गया। इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट टाइम जब मेरे स्टॉक को ब्रेकआउट दिखाना है, मुझे बस खाली इस लेवल को ब्रेक नहीं करना है, बट मुझे इंस्टेड यू नो व्हाट आई एम हिंटिंग टुवर्ड्स इस लेवल इज, ये जो कैंडल है जिसके अंदर बहुत बड़ी विक है, इसकी बॉडी की जो टॉप पार्ट है, बॉडी के जो टॉप पार्ट है, मुझे खाली उसको मार्क नहीं करना है एज रेजिस्टेंस लेवल, बट मुझे आई वांट टू इंश्योर दैट the entire wick is also considered when I'm marking my supports and resistances, because इस लेवल के बाद ही आपकी रिजेक्शन आई है, तभी सेलर जो है स्टॉक के अंदर आए और उन्होंने स्टॉक को नीचे पुश किया। तो जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे इसके अंदर, यू वांट टू इंश्योर दैट द एंटायर सप्लाई दैट्स कमिंग थ्रू दिस वीक हैज बीन अब्सॉर्ब्ड एंड देन यू नो एसेंशियली कॉल इट अ ब्रेकआउट। एंड यू वांट टू इंश्योर दैट वॉल्यूम्स आर आल्सो स्ट्रांग, बिकॉज इसकी जो सप्लाई थी, ऑफ कोर्स जैसी एक ऐसी कैंडल्स बनती है जिन दिन पे, उन दिन पे वॉल्यूम्स टिपिकली हायर होते हैं क्योंकि सेलर्स ने काफी ज्यादा नंबर के अंदर इस स्टॉक को सेल किया है, विच इज वाई द वॉल्यूम इज हाई एंड विच इज वाई द स्टॉक हैज कम डाउन टू अ सर्टेन लेवल। तो इस चीज को आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक और चीज मेरे को एडिशनली ऐड करनी थी, जैसे ही आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया स्टॉक ने, अब जो ये रेजिस्टेंस है ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन गया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, रोल्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ टुडे कैन बिकम द सपोर्ट ऑफ टुमारो, सब्सिक्वेंटली द सपोर्ट ऑफ टुमारो कैन बिकम द रेजिस्टेंस ऑफ टुडे, ठीक है? तो प्लीज इंश्योर दैट, कीप इट इन माइंड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। मुझे ये चीज आपको बतानी बहुत जरूरी थी। दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट एम्फसाइज ऑन एंड जनरली सरफेस लेवल पे हम बात करके निकल जाते हैं, बट जब तक आप एनाटमी को और प्राइस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे नहीं, खुद इसको चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस या इस पर्टिकुलर टॉपिक को मास्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? एक एडवांस टूल के बारे में भी हम बात करेंगे अभी जब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे थोड़े एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बट इसके अलावा मैं दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ। आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को आइसोलेशन में नहीं देखना है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। आपको इसको मूविंग एवरेजेस के साथ, ट्रेंड लाइंस के साथ, वॉल्यूम या आरएसआई के साथ पेयर करके देखना है। दीज टूल्स कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। अगर आपको हर टूल के अंदर ये जो चार पांच टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं या फिर इंडिकेटर्स एक्सेट्रा हैं, इनके अंदर आपको बाय सिग्नल दिख रहा है, इनके अंदर आपको बुलिश सिग्नल दिख रहा है, देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस, दैट मींस दैट इज अ हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप, राइट? सो यू वांट टू लुक एट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फॉर श्योर। दिस कुड बी अ बेसिक पॉइंट फॉर यू टू लुक एट. Make sure that there is good price action and the stock is breaking out, etc. If you're trading on the upside. But if there is confluence in terms of volume, if the volume is confirming a breakout, if the moving averages are aligned, if the RSI is also indicating this, if the RS is indicating this, then of course that gives you a lot more confidence and that becomes a high probability setup for you to trade. So
You want to pair it with, want to pair it with these tools and not look at it in isolation. एंड अगर आपको ये सारी चीज़ों को मेरे साथ सीखना है वन ऑन वन, if you want to learn from scratch, if there are things that you're not able to understand here and you want to connect with me, if there are more advanced concepts that you want to discuss around supports and resistances, want me to incorporate them within your own trading principle and strategy, then please drop me an email on the email on this drop me an email on the email ID that is displayed on the screen, and we shall connect for a one-on-one session. I take them on weekends generally, and we can structure it in a way that I'm covering this aspect and also teaching you other things if required, right? So I hope that is clear. You can connect with me if you'd like. अब थोड़ा ट्रेडिंग व्यू की बात करते हैं, और मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलता हूँ. इन जनरल जब भी आप प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, एसएनआर सीख रहे हैं, प्राइस पैटर्न्स की रिकग्निशन सीख रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले इंडेक्स लेवल पे देखें, क्योंकि इन जनरल इंडेक्स पे ये पैटर्न्स वगैरह ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा जल्दी स्पॉट होते हैं और क्लीनर पैटर्न्स दिखते हैं देन इंडाइसेस, सॉरी देन इंडिविजुअल स्टॉक्स. You can then of course use this learning and translate them to individual stocks etc and whatever you're tracking, बट आप सीखें इंडेक्स लेवल पे एंड देन फिर उसको स्टॉक्स पे ट्रांसलेट कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी 50 फर्स्ट. एंड एक कॉमन क्वेश्चन मेरे को काफी बार मिला है कि यार सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस क्या मैं टेढ़े ड्रॉ कर सकता हूँ? कैन इट बी डायगोनल? कैन इट बी नॉट हॉरिजॉन्टल, राइट? डू आई हैव टू ड्रॉ देम हॉरिजॉन्टल ऑल द टाइम? तो my answer to that is, if you're drawing diagonally, if you're drawing teddy midi lines, you have to be very confident with your setup first to begin with. And in general, these are of course trend lines you can certainly look at, but supports and resistances typically वही areas होते हैं जहाँ पे maximum volatility होती है. तो it does not matter आप टेढ़ी ड्रॉ करें सीधी ड्रॉ करें, अगर basic principle of supports and resistances qualify हो रहा है, which is heightened volatility and reversal from those levels time and again, then certainly आप SNR को diagonally draw कीजिए, आप टेढ़ा मेढ़ा draw कीजिए, that does not matter. But ensure that there are enough touch points to call it a support or resistance region, and you're not marking random lines on your chart. तो निफ्टी 50 पे आ जाते हैं. वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है. अगर मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे अगर यहाँ पे बताऊं, तो एक ऐसा टच पॉइंट जहाँ पे बार बार स्टॉक आके टच करता है और ऊपर चले जाता है, अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मुझे ये एक पर्टिकुलर रीजन दिखता है जहाँ पे बार बार स्टॉक या निफ्टी 50 आता है और बाउंस बैक करता है. क्या आपको दिखा ये दिस रीजन? सो इट्स अ हायर लो स्ट्रक्चर, and every time the stock comes to the red line, it pulls back here, it comes here, it pulls back here, it comes on top again. Then this is a shakeout candle, it came here and then went again. फिर इसको ये ब्रेक करता है इधर, राइट? सो दिस हैज अबाउट 1 2 3 4 almost 4 real instances when the stock has pulled from this red line, which is something I can call as a resistance level, sorry, a support level here, right? अगर मैं थोड़ा recent पे आ जाऊँ, I can call this area also as a support area, because क्या हो रहा है इधर, स्टॉक जो है या फिर निफ्टी 50 जो है इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट करती है, यहाँ पे शेकआउट कैंडल बनती है, वापस पुल बैक दिखाती है, फिर निफ्टी 50 वापस नीचे आती है, इस रीजन से वापस पुल बैक दिखाती है, फिर वापस नीचे आती है, इस रीजन से वापस पुल बैक दिखाती है, वापस नीचे आती है. इट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग टू रिवर्स अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर, बट we can definitely see it testing this level sometime soon if things don't go well for Nifty and broad markets are not nice. If the sentiment around the street is not nice, it can certainly test these levels again. So this green zone, which is about 22,200 वाला region, becomes a strong support region for Nifty, right? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई निफ्टी का सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या है, या फिर वो ऐसा लेवल क्या है जिसके बाद आप बोलेंगे कि भाई देयर कुड बी अ ब्लड बाथ इन द मार्केट, दिस इज दैट लेवल, राइट? 22,200 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है, दैट कुड बी डिजास्टर फॉर अस, बिकॉज ये अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रीजन को ब्रेक करके फिर नीचे आएगा. सो दैट इज व्हाट यू कैन हिंट टुवर्ड्स, राइट? दिस इज निफ्टी 50 फॉर यू. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर सकते हैं. ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पे बार बार स्टॉक ऊपर आता है और वापस नीचे चला जाता है. दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज एसेंशियली पॉइंट नंबर 2, स्टॉक पुल बैक अप, पॉइंट नंबर 3 स्टॉक पुल डाउन, स्टॉक
पॉइंट नंबर 4 हियर, फोर्थ पॉइंट पे आके स्टॉक जो है, सॉरी निफ्टी 50 जो है वो इसको ब्रेक करता है और ऊपर चलना शुरू करता है. So this could be a potential resistance level in this particular zone that we're looking at. So do you understand? You have to train your eyes a little bit in order for you to identify these levels. But इसको थोड़ा stock level पे समझने की कोशिश करते हैं. कोटक बैंक का एग्जांपल लेते हैं. ये एक स्टॉक है जिसने काफी ज्यादा टाइम तक कंसोलिडेशन दिखाई है. सो इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे कितना आसान है मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना. मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे हूँ बाय द वे. जब आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करना सीख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड दैट आप एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट, जनरली एक वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे ही प्रैक्टिस करें. बिकॉज वीकली चार्ट पे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करना सिंपलर होता है, ईजियर होता है, स्पॉट करना भी सिंपलर और ईजियर होता है. देन यू कैन सर्टनली स्विच टू ए लोअर टाइम फ्रेम चार्ट. डेली चार्ट पे करिए, 75 मिनट पे करिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस, राइट. सो डेली चार्ट पे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये जो पर्टिकुलर प्राइस लेवल है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर अ लार्ज प्राइवेट बैंक लाइक कोटक महिंद्रा बैंक. बिकॉज बार बार जैसी स्टॉक इस लेवल पे आता है, यहाँ पे बाइंग आ जाती है, फिर वापस नीचे आया, बाइंग आ गई. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 5 इंस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं पिछले 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर, कि जब जब ये स्टॉक 328 इश लेवल्स पे आया है, ये वापस पुल बैक करके ऊपर चले जाता है. दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर कोटक बैंक. इफ थिंग्स हैव टू गो रॉन्ग एट कोटक बैंक, you will already know, because it will undercut the 325 level and go down. ठीक है. तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया. सब्सिक्वेंटली आप एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना सकते हैं. अब आपको वो लेवल मार्क करना है जहां पे मैक्सिमम टच पॉइंट्स है. तो इस पूरे दौरान मैक्सिमम टच पॉइंट्स मेरे हिसाब से ये जो ऊपर वाली ग्रीन बॉक्स मैंने ड्रॉ करा है उसके अंदर है. पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 instances in the last 5+ years when the stock has reached this level and then it has pulled back down. ठीक है. तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, जिसके ऊपर अगर कोटक बैंक ट्रेड कर रहा है, आई नो दैट देयर कुड बी अ पोटेंशियल अप ट्रेंड हियर इन द स्टॉक, राइट. तो नाउ दैट कोटक बैंक इज ट्रेडिंग अबव इट्स रेजिस्टेंस जोन, आई वांट टू इंश्योर, और यू वांट टू इंश्योर दैट दिस ओवरहेड सप्लाई क्या होता है ये मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, बट इन जनरल आप बोल सकते हैं ये जो ट्रैप्ड बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक खरीदा था, ये अभी भी प्रेजेंट है. ठीक है. तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप वेट करेंगे कि ये ओवरहेड सप्लाई, ये जो ट्रैप्ड बायर्स हैं, इनकी सप्लाई भी अब्सॉर्ब हो जाए. बिकॉज इस बंदे ने ये स्टॉक इस हाई लेवल पे खरीदा था 2021 के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये लेवल आया था 2025 के अंदर. एंड आई एम श्योर 2025 के अंदर भी देयर मस्ट बी पीपल हु मस्ट हैव बॉट दिस स्टॉक हियर, एंड दैट पर्सन हैजंट सीन एनी मटेरियल प्रॉफिट्स इन द लास्ट 1.5 ईयर, राइट. तो जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे आएगा, नेचुरल इंस्टिंक्ट उस बंदे का जिसने ये स्टॉक 2025 में खरीदा होगा, यही होगा कि मैं स्टॉक को बेच देता हूँ. ठीक है. और वो जैसे ही बेचेगा, स्टॉक नीचे आना शुरू होगा, बिकॉज मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, सेलिंग प्रेशर बन जाएगा. तो बार बार यही जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, बिकॉज वहां पे ओवरहेड सप्लाई थी. तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, तो आप इस स्टॉक के अंदर तभी एंटर करेंगे जब ये ओवरहेड सप्लाई अब्सॉर्ब हो जाए, मतलब जब स्टॉक इन लेवल्स को भी पार कर जाए. तो मेरा रेजिस्टेंस एक नहीं, और भी रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं. ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल 1 है अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए. इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन और बनाना चाहूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन, डॉटेड लाइन बना दी येलो कलर की, ये जो मेरी रेजिस्टेंस लाइन है, ये मेरी R2 है, रेजिस्टेंस 2 लेवल है, जिसके अंदर जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं इसको. बिकॉज अब इस स्टॉक के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रॉफिट नहीं हो रहा. दैट मीन्स इट इज अ फ्री बर्ड. देर आर नो ट्रैप्ड बायर्स इन दिस स्टॉक. ठीक है. So I think with that, the resistance part, the overhead supply part is also a little clear, and I hope that helps. Next एक एग्जांपल पे चलते हैं, इंडियन होटल्स. इसके अंदर यार देखो, आप एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट. लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है इधर. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ ऐसे. ठीक है. ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी ऐसे, सॉरी, हाँ जी, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी ऐसे. इसका मतलब क्या है, जैसे ही मेरा स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जा रहा है, क्या मुझे खरीद लेना चाहिए? नहीं.
देयर कुड बी रेजिस्टेंस एट दीज लेवल्स। आप देखेंगे, अगर मैं इतने चार्ट पोर्शन को हाइड कर दूं, इतने चार्ट पोर्शन को, ठीक है, ये जो मेरे कर्सर के राइट साइड में है, क्या ये जो लेवल है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है? बिल्कुल है। बट ये जो स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चले जाता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग अबाउट द स्टॉक दैट वी डोंट नो अबाउट। हो सकता है हॉस्पिटैलिटी के अंदर हेडविंड्स चल रही हो सकता है आईएचसीएल के अंदर फाइनेंशियल्स इतने अच्छे ना आए हो। आई हैवंट गॉन, आई हैवंट done any fundamental analysis or macro analysis on the environment or sector it belongs to, but in general अगर इसने अपने एक लॉन्ग टर्म जो 2024 नवंबर से चलता है वो एक सपोर्ट रीजन को ब्रेक किया है, देयर कुड बी थिंग्स अबाउट दिस स्टॉक दैट यू एंड आई आर नॉट अवेयर ऑफ, बट इट इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, राइट? तो स्टॉक इसके नीचे गया, अब ये स्टॉक वापस पुल बैक कर रहा है और वापस अपने एक सपोर्ट रीजन के ऊपर आ रहा है, के पास आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था थ्योरी समझते वक्त? मैंने आपको ये बताया था कि कल का सपोर्ट आज का रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट रीजन था, ये हमारा रेजिस्टेंस रीजन बन सकता है आज के लिए। तो अगर मेरे स्टॉक को मटेरियली हाई जाना है, पहले मुझे इस प्रीवियस सपोर्ट एंड नाउ न्यू रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, जो मैंने इस पर्टिकुलर वीक के अंदर कर लिया था, ठीक है। अब स्टॉक जो है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, दैट मीन्स हो सकता है कि ये अपने सपोर्ट, सॉरी, अपने रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करके नहीं आ रहा, वापस नीचे पुल बैक दिखा रहा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, राइट? सो वी विल वेट फॉर इट, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग एक्सेट्रा, बट ये आपको एक क्लियर एग्जांपल दिख गया कि कल का सपोर्ट आज का रेजिस्टेंस कैसे बन सकता है। नेक्स्ट चार्ट पे आ जाते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील पे। इसके अंदर भी आप देखेंगे स्टॉक जो है एक चैनल में चल रहा है, एक अपवर्ड चैनल में चल रहा है। अब ये स्टॉक्स को मैं रोज ट्रैक नहीं करता हूँ, राइट? जैसे ही मैं आपका चार्ट खोल रहा हूँ, आई हैव ट्रेन्ड माय आईज इनफ टू अंडरस्टैंड दैट यस दिस स्टॉक इज मूविंग इन एन अपवर्ड चैनल। व्हाट दैट मीन्स इज, इस दिन से लेके इस दिन तक, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2022 से लेके 2026 तक, 4 साल तक, ये स्टॉक बस हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब ये जो प्रीवियस लो बनाता है उसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करूंगा कि जब जब ये स्टॉक इस रेड लाइन को टच करता है, ये पुल बैक दिखाना शुरू कर देता है। एंड जब जब ये स्टॉक जब जब ये स्टॉक इस येलो रेक्टेंगल विच इज द येलो जोन, इसको टच करता है, ये नीचे आना शुरू हो जाता है, राइट? तो राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग इन अ जोन where if it breaches this yellow rectangle, I can certainly say that there is something really good happening with JSW Steel that you and I don't know about, but that is showing positive price action, which is outside of its previous trend. तो 2022 से जो ये ट्रेंड दिखाता आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, दीज आर रफ रेंजेस, राइट? इसके बेसिस पे आपको बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन नहीं बनाना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैव टू गो राइट फॉर अ स्टॉक टू एंटर माय स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, which of course we can discuss in detail and we will discuss due course में। बट मैं आपको बस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करना सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सपोर्ट रीजन को टच हो रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि भाई स्टॉक जो है ऊपर ही जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया, अब तो ब्रेकआउट हो गया, मैं खरीद लेता हूँ, राइट? सो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, बट इन जनरल आपको इंटरेस्ट कब आएगा? जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के पास है स्टॉक। अगर पास नहीं है स्टॉक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास, तो फिर हम इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके अंदर। हमें रेंज बाउंड स्टॉक को थ्रू ही ट्रेड करना है, हमें तो स्टॉक को ट्रेड करना है ना जो हाइटेंड वॉलेटिलिटी एरिया के अंदर है। अब वो एक मूव दिखाएगा अपसाइड या डाउन साइड पे, हमें नहीं पता, बट हम इंटरेस्टेड ही तब होंगे जब हमारा स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस के पास है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, CDSL। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ग्रेट स्टॉक टू प्रैक्टिस, स्पेशली ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, बिकॉज इसने काफी सारे रीजंस के अंदर काफी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बनाए हैं, उनको ब्रेक किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर ऊपर आ जाइए, स्टॉक कंसोलिडेट किया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं बहुत रफ बना रहा हूँ, आप देख रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे आ गए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, वापस आ जाइए यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट? सो दीज आर ऑफ कोर्स रफ रेजिस्टेंस लेवल्स दैट आई एम ड्राइंग, बट इन जनरल आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।
कि कोई भी स्टॉक को मटेरियल मूव दिखाने के लिए अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके आगे निकलना होता है, और अगर आपने ये मास्टर कर लिया, ठीक है, you can make outsized gains in the markets. So practice on CDSL on the daily time frame chart. Try to be as accurate as possible. मैं तो आपको एक rough example दिखा रहा हूँ, but of course if you have any doubts feel free to drop them over email. Like I've displayed my email and I will also put it down in the description box. You can send me screenshots. I can of course review them if you've marked your SNRs correctly, and we can take it from there. गोल्ड पे भी आ जाते हैं एक बार, गोल्ड सिल्वर पे भी आ जाते हैं एक बार। गोल्ड में ये इसका लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई मेरे को आपको ये बताना था कि यार सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हर चीज पे चलते हैं अगर उसका एक प्राइस पैटर्न या चार्ट पैटर्न अवेलेबल है मार्केट के अंदर, राइट? तो इफ देर इज एनी commodity, if there is any specific metal that you're tracking, कुछ भी, मतलब metals commodities का पार्टी है, but it is not important कि आप stocks पे ही supports and resistances बनाए. Anything that has a price chart, you can draw supports and resistances on that and trade them successfully. So gold के केस के अंदर भी आप देख पा रहे हैं multiple zones मैंने already mark किए हुए हैं, जहाँ पे आपका strong resistance था, and उसके beyond जैसे ही चला stock gold, उसने एक रैली दिखानी शुरू कर दी, right? So this is a basic tool that you can use, certainly available to you for free. आपको इसके अंदर कोई भी एडवांस प्रिंसिपल वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत, एंड आपको ये of course with experience आएगा. You have to train your eyes, but this is a very powerful tool and I want you guys to use it judiciously. तो guys यार, अब बात करते हैं उस टूल की जिसके बारे में मैं आपको प्रेजेंटेशन के बीच में भी बोल रहा था. ये एक बोनस पार्ट है ऑफ कोर्स, एंड दिस इज ओनली रेलेवेंट टू यू इफ यू आर एबल टू ड्रॉ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस रियली वेल अपने आप से, फिर इस टूल पे आना, ठीक है? ये थोड़ा एडवांस्ड है. अगर आपको अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस गेम को थोड़ा एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो आप इस टूल को यूज कीजिए. इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट सिंस मैं इस टॉपिक पे एक नई फ्रेश लंबी वीडियो बना रहा हूँ, आई थॉट आई विल कवर दिस इज वेल. आप रैंडम कोई भी स्टॉक को खोल लीजिए जिसके ऊपर आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनानी है. मैंने CDSL ही लिया हुआ है. ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए, और ऑफ कोर्स मैं जब इसको मैनुअली देख रहा हूँ from the naked eye, of course I am able to see that this would probably be this green zone which I have drawn in front of you, could probably be the resistance zone for this, right? Beyond this I'm interested in the stock. अब अगर मुझे इसको और एक्यूरेटली लेवल बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? ट्रेडिंग व्यू के इस पैनल पे आप अगर इस पैनल पे आएंगे, विच इज 1 2 3 4 and 5, द फिफ्थ बटन फ्रॉम द टॉप, you will just click this small arrow and click on forecasting and measurement tools. इसके अंदर आ जाएंगे आप वॉल्यूम बेस्ड पे, और आप लिखेंगे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, देखेंगे यहाँ पे, उसको आप क्लिक कर दीजिए. जैसे ही आपने क्लिक किया आपके हाथ में FRVP का टूल आ गया है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मेरे को मेरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मार्क करनी है. मैं क्या करूंगा, मैं इस कर्सर को लूंगा और मैं उस जोन पे या उस कैंडल पे आ जाऊंगा जहां से ये रीजन शुरू हो रहा है, और मैं एक सिंगल क्लिक कर दूंगा. जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक कर दिया, ये मेरा टूल एंगेज हो गया. नाउ आई विल स्ट्रेच इट और ड्रैग इट टू द लेटेस्ट कैंडल, या फिर उस पीरियड के अंदर जहां पे मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करना है, और मैं इसको क्लिक कर दूंगा. जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे एक लेवल मिला या फिर एक लाइन मिली जहां पे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वॉलेटिलिटी हाईएस्ट थी. मतलब ये जो ग्रीन जोन मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा सपोर्ट जोन तो बन गया, सॉरी रेजिस्टेंस जोन तो बन गया. बट अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर सपोर्ट मार्क करना है, वो रीजन मार्क करना है जहां पे वॉलेटिलिटी हाईएस्ट है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इस टूल की मदद से कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स इस टूल से आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक लेवल आएगा. अगर ऑफ कोर्स ये हायर एंड पे आता है तो ऑफ कोर्स ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा. अगर ये लोअर एंड पे आता है तो आपका सपोर्ट लेवल होगा. बट इन जनरल व्हाट डज दिस टूल हिंट टुवर्ड्स? दिस इज टेलिंग मी that on this particular price level which is 1208 roughly, ये जो व्हाइट कलर की लाइन इसने मेरे को मार्क करके दी है, ये वो लाइन है जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स. That means there is maximum interest in this stock on this particular level, at this particular level, sorry. ठीक है? तो मैं अपने सपोर्ट को और एक्यूरेटली कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? मेरे लिए सपोर्ट क्या था? वही रीजन जहाँ पे वॉलेटिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है, वहीं से जहाँ से प्राइस रिवर्स होता है. तो अगर मैं यहाँ पे चुपचाप से एक लाइन बना दूं और ये FRVP टूल को
अब मेरा इससे काम हो गया है, इस FRVP टूल को डिलीट कर दूं तो क्या ये मेरा जो येलो लाइन बनी है, क्या ये मेरी एक सपोर्ट लाइन बन गई? बिल्कुल बन गई। क्या ये थोड़ी और एक्यूरेट सपोर्ट लाइन बन गई? बिल्कुल, बिकॉज इस पर्टिकुलर लेवल पे आपका वॉलेटिलिटी हाईएस्ट है इन जनरल। ठीक है, ऑल्दो हम इसको एक एज ए जोन ही ट्रीट करते हैं कि भाई ये लाइन और ये जो बॉटम है इसके बीच में आपका जोन आ गया, बट इन जनरल आपको ये एक्यूरेटली पिन पॉइंट करके बता रहा है कि कहाँ से आपका प्राइस रिवर्स करने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, because this is telling you that region where the volume has been the highest in this entire time frame that you have selected. ठीक है, राइट गाइस, तो आई होप आप सबको ये पर्टिकुलर टूल समझ आया हो एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और जर्नीज, and I hope you guys have liked this video, have derived some value from it. I am not used to making such lengthy videos, but of course I will get better at it. In general मैं videos के अंदर ज़्यादा edits नहीं करता हूँ, ज़्यादा cuts नहीं लगाता हूँ, which is why there could be small hiccups here and there, but I will get better, we will get better with time. And I hope to see you guys in the next one. Until then, take care and do hit the like button. If you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe and also drop a comment. There is a lot of effort that I put in while making these videos. And यार, अगर आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं of course कंटिन्यू करता रहूंगा and आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा. If you wish to connect with me one on one, please drop me an email and we will do that. I'll see you guys in the next one. Until then, take care. Goodbye.